بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ پارٹ 4 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں یثرب کا ابلیس، مصنف اسلم راہی MA، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال نمبر 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں پارٹ 4 صفحہ نمبر 51 سے۔ جب وہ بیڑا دیس کے پاس آتے تو انہوں نے دیکھا وہاں بہت سے لوگ جمع تھے اور کنویں کے ارد گرد کئی ریوڑ کھڑے تھے۔ ایک جگہ گول دائرے کی شکل میں عرب مرد اور عورتیں جمع تھی۔ راہیل ریوڑ کو اس کچے ہوش سے پانی پلانے لگی جس میں ہر وقت پانی جمع رہتا تھا۔ یہودا، زمران، اجیر اور ذرا اس طرف بڑے جہاں لوگوں کا جمکٹا ہو رہا تھا۔ یہودا ہجوم کو چیر کر جب اندر گیا تو اس نے دیکھا وہاں زمین پر ایک بوڑھی عورت کی لاش پڑی تھی اور وہ خون میں لت پت تھی۔ یہودا نے غریب کھڑے ایک بوڑھے سے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ وہ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ اسے بوڑھے نے اپنی بھیگی پلکیں اپنے امامے کے پلو سے خشک کرتے ہوئے انتہائی بے بسی اور مایوسی میں کہا، یہ عرب ہے اور بنو واقف سے ہے۔ کنویں پر اس کا ریوڑ پانی پی رہا تھا کہ اوپر سے دو یہودی اپنا ریوڑ لے آئے۔ انہوں نے زبردستی اس بڑی خاتون کے ریوڑ کو ہاتھ کر پیچھے ہٹا دیا اور اپنے ریوڑ کو پانی پلانے لگے۔ اس مرنے والی خاتون نے جب اعتراض کیا تو ان دونوں نے اس قدر مارا کہ یہ بے بسی کی حالت میں مر گئی۔ یہ بیچاری آج ہی ریوڑ کے ساتھ آئی تھی۔ ریوڑ اس کا 15 سالہ بیٹا چرایا کرتا تھا۔ وہ بیچارہ کل بیمار ہو گیا تھا اور وہ مجبوراً اس خاتون کو ریوڑ کے ساتھ آنا پڑا۔ یہودا نے غضب و غیظ کی حالت میں پوچھا، وہ یہودی جوان کہاں ہے؟ اس بوڑھے عرب نے کنویں کے قریب ہی کھڑے دو یہودیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہودا وہاں سے نکل کر کنویں کے قریب کھڑے ان دونوں جوان کی طرف بڑھا۔ اس نے قریب جا کر یہودا سے اصیلی آواز اور ذہینہ لہجے میں پوچھا، تم دونوں نے اس بوڑھی عورت کو کیوں مار دیا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، وہ ہمارے ساتھ الجھی تھی اور ہمارے ریوڑ کے پانی پلانے میں حامل ہوئی تھی۔ یہودا نے اس کی طرف خوفناک انداز میں دیکھا اور پوچھا، پہلے اس کا ریوڑ پانی پی رہا تھا، تم نے اس کا ریوڑ زبردستی ہٹا کر اپنے ریوڑ کو کیوں پانی پلانا شروع کر دیا تھا؟ اس یہودی نے ہٹ درمی اور بدمعاملگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارا حق تھا، اور پھر تم ہم سے استفہامیہ انداز میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم ہمارے متصب نہیں ہو کہ ہم تمہارے سامنے جواب دیں ہو۔ اس بوڑھی اور ضعیف عورت کا قتل کوئی اتنا اہم نہیں ہے، اگر ہم اسے نہ مارتے تو چند یوم بعد وہ اپنی ہی موت مر جاتی۔ یہودا نے غصے کی حالت میں ایک زوردار تماچا اس یہودی کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، تو ایسی قدرت تو نہیں رکھتا کہ عرب پر مظالم کو اپنا حق جانے؟ تو نے میری ایک عرب ماں کو قتل کیا ہے، میں تیری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا اور تجھ سے اس کے قتل کا قصاص لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی یہودا نے ایک سخت جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار کھینچی اور ان کی گردن کاٹ دی۔ دوسرا یہودی زخم لگا کر پیچھے ہٹ گیا اور فوراً اپنی تلوار نیام سے نکال کر دوبارہ آگے بڑھا اور یہودا پر حملہ آور ہوا، لیکن اس وقت تک یہودا اس کے ساتھی کو قتل کر کے اس سے نمٹنے کو تیار ہو چکا تھا۔ لوگوں کے ہجوم سے زمران، اجیر اور ذرا نے نکل کر یہودا کو اس لڑائی سے روکنا چاہا، لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچے تو یہودا نے دوسرے یہودی کی گردن بھی کاٹ کر اس کے جسم سے علیحدہ کر دی تھی۔ راہیل کو ابھی تک اس لڑائی کی خبر نہ ہوئی تھی کیونکہ اس کے اور یہودا کے درمیان لوگوں کا ہجوم حائل تھا، لہٰذا وہ بڑے سکون سے اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہی تھی۔ وہ یہودا جوانوں کے قتل ہونے پر وہاں کھڑے 20-25 کے قریب یہودی جو جوان دھپڑ گئے اور اپنی تلواریں سونپ کر یہودا کی طرف بھاگے۔ زمرہ، اجر اور ذرا نے آگے بڑھ کر یہودا کو ان سب سے بچانا چاہا، لیکن وہ یوں حملہ آور ہوئے تھے جیسے بھوکے سور اپنے بھارے سے نکلتے ہیں۔ یہودا نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنے لوگوں کے سامنے وہ بیچارہ اکیلا کیا کرتا، اور حملہ آور یہودیوں کی یہودا کے ساتھ ساتھ زمران، اجل اور ذرا کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہاں کھڑے سارے عرب اس سے خوف زدہ ہو گئے تھے۔
کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر یہودا کا دفاع کرتا۔ جب ریور پانی پی کر پیچھے ہٹ گیا تو راہیل یہودا، زمرہ، اجل اور زرا کو بلانے اس طرف آئی جہاں لوگ جمع ہو رہے تھے۔ اس وقت حملہ آور یہودی اپنا کام کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اب وہ اس خدشے کے تحت کہ وہاں کھڑے عرب کہیں بڑھ کر ان پر حملہ آور نہ ہو جائیں، اپنے اپنے ریور ہاتھ پر وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ راہیل جب اس جگہ آئی جہاں اس کے باپ کے علاوہ یہودا، زمرہ اور زرا کی لاشیں خون میں لٹپٹ پڑی تھی تو وہ بیچاری بھاگ کر آگے بڑھی اور ایک ایک لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس وقت شمال مشرق کی طرف سے روبیل اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا آیا تھا۔ کنویں کے قریب آ کر جب اس نے لاشیں بکھری ہوئی دیکھی تو اس کا رنگ کپک ہو گیا۔ وہ جب گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا تو اس نے دیکھا راہیل یہودا کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی اور دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے بھی خون ہو رہے تھے۔ راہیل نے جب سر اٹھا کر روبیل کو اپنی طرف کھڑے دیکھا تو وہ بیچاری اور زیادہ بےتاب ہو کر رونے لگی تھی۔ وہاں کھڑے سارے عرب روبیل کے گرد جمع ہو گئے تھے اور قبل اس کے روبیل کچھ پوچھتا وہی بوڑھا جس نے یہودا سے گفتگو کی تھی آگے بڑھ کر روبیل کو ساری داستان کہہ دی تھی۔ ستم کی پوری داستان سننے کے بعد روبیل نے وہاں کھڑے عربوں کو مخاطب کر کے کہا، اے عبد وزرن، سب ہے تمہاری بے بسی اور بزدلی پر یہودی قتل کرتے رہے اور تم خاموش کھڑے رہ کر تماشا دیکھتے رہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کب تک تم لوگ پتھروں سے پانی تلاش کرتے رہو گے؟ کب تک تم یہودیوں کے اندر پر سگشتہ چڑیوں کی طرح پاس کنوس اور شدیدہ نا امید میں ڈوبے رہو گے؟ اے اوس خضرن کے فرزندان ازل، کب تک تمہاری روح میں طرف اور قلب میں حرارت پیدا ہوگی؟ اپنے اوپر مسلط خاموشی کی بگل کو اتار کر پھینک دو اور چند زندگی کی حرارت اور توانائی سے کام لے کر تازہ سفر کا آغاز کرو۔ اگر تم یوں ہی خاموش رہ کر اپنے عرب بھائیوں کا قتل عام کر دیکھتے رہے تو یاد رکھو کہ ایک روز بھی وہ آئے گا جب یثرب کے یہودی تمہاری نسلیں تباہ کر دیں گے۔ تاریخ کے بوسیدہ اوراق میں تمہاری حیثیت ایک بزدل اور بے اہمیت قوم کی سی ہو کر بکھر جائے گی۔ روبیل ذرا رفا اور پھر انتہائی کرب امیز اور جلد اور جا غسل لہجے میں اس نے کہا، اے اوس وزران، قاتل یہود بچ کر یثرب میں داخل نہ ہونے پائے، آؤ ضرب قوی اور برق شکن بن کر ان سے انتقام لیں۔ اگر تم میرے ساتھ متحمل ہو گئے تو میں فتح کی نوید اور انقلاب آستین پیغام کی خبر دوں گا۔ اپنے گھوڑے کو وہیں چھوڑ کر روبیل اپنی تلوار بے نیام کرتا ہوا بولا، آؤ میرے ساتھ آؤ، دیکھتا ہوں وہ ہم سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ عرب میں تھوڑی دیر قبل تک یہودیوں کے سامنے خوف اور دہشت کا شکار تھے۔ زور سے یہودیوں کے خلاف نعرے بلند کرنے لگے تھے۔ لگتا تھا انہوں نے روبیل کے کہنے پر غم و حسرت کی نقاب اتار کر پھینکی وہ وحشیانہ انداز میں اپنی تلواریں بے نیاب کر کے شور برپا کرتے ہوئے ایک انوکھی نشے اور نادیدہ انتشاف میں روبیل کے ساتھ ہو لیے تھے۔ روبیل ان کے آگے تھا اور سب عرب کی اس کے پیچھے ایک یہودیوں کی طرف بھاگتے تھے جب جو کنویں کے پاس اپنے ریور سمیٹ رہے تھے۔ یہودیوں نے جب عربوں کو روبیل کی سرگردگی میں اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو اپنے ریور چھوڑ کر انہوں نے اپنی تلواریں سونٹ لی اور ایک جگہ جمع ہو گئے، لیکن غصے اور انتقام کی آگ میں بھپرے ہوئے روبیل اور اس کے ساتھیوں نے آتے ہی ان پر ازقد خشونت اور قہر مہارتے کے ساتھ حملہ کیا تھا کہ یہودی جارحیت کی ایک طرف اپنے دفاع تک کے سارے قاعدے اور اصول بھول گئے تھے۔ عربوں نے ایک یہودی کے جسم کو کئی 3 ٹکڑوں میں کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ سارے یہودی کو ختم کرنے کے بعد روبیل نے عربوں سے کہا کہ وہ اپنے ریور لے کر اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ لہٰذا سب عرب واپس آئے اور اپنے ریور کو شہر کی طرف مارنے لگے تھے۔ روبیل اس جگہ آیا جہاں لاشیں پڑی تھی۔ اس نے دیکھا وہاں راہیل بیٹی ابھی تک رو رہی تھی۔ جب روبیل اس کے پاس آیا اور راہیل نے اسے خون آلود کپڑوں میں دیکھا تو وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی اور اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اس نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، آپ زخمی تو نہیں ہیں؟ روبیل نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ قتل ہونے والے یہودیوں کا خون ہے، ہم نے سب کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ روبیل نے باری باری لاشوں کو اٹھایا اور انہیں وہ اپنے یہودا کے گھوڑوں پر رکھنے لگا تھا۔ راہیل کو نہ جانے کیا سوجی، وہ بھاگ کر آگے بڑھی اور روبیل کی پشت سے لپٹتے ہوئے اس نے کہا، آپ یہاں سے بھاگ جائیں، میں ان لاشوں کو سنبھال لوں گی۔ خدا کے لیے آپ بھاگ کر اپنی جان بچائیں ورنہ یہودی آپ سے انتقام لیں گے۔ میں آپ کی ماں، بہن، بھائی اور آپ اپنے باپ کا غصہ تو سہ گئی ہوں، لیکن آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو میں برداشت نہ کر سکوں گی، زندہ دربور ہو جاؤں گی۔ روبیل جب خاموش رہا تو راہیل نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، آہ میرے حبیب، آپ میری زندگی کی حرارت اور میری گواہی ہیں۔
अगर यहूदियों ने आपको मुझसे छीन लिया तो मैं बेवतनी तयूर की तरह यसरब के सहराओं में भटक भटक कर मर जाऊंगी। फिर अचानक राहिल नीचे बैठ गई और रुबेल के पांव पकड़कर इनसे रोती और सिसकती हुई आवाज में कहा, भाग जाएं, अल्लाह के वास्ते भागकर अपनी जान बचाएं। रुबेल मुड़ा और जमीन पर बैठी हुई राहिल को शानों से पकड़कर ऊपर उठाते हुए इसने कहा, राहिल राहिल, मैं यसरब में तुम्हें तन्हा छोड़कर क्यों भाग जाऊं? राहिल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब हम यसरब में नहीं रहेंगे, यहाँ हर वक्त मौत हमारे सरों पर मंडराती रहेगी। रुबेल ने सोचते हुए कहा, नहीं राहिल, हम यहाँ से भागेंगे नहीं। आज रात मेरे और मालिक बिन अजलान के जिम्मे एक ऐसा काम है, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो फतियों की लानत से हमेशा के लिए हमें निजात मिल जाएगी और अपनी कौम की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मैं ये काम करूंगा। फिर रुबेल ने राहिल की पीठ थपकाते हुए कहा, चलो राहिल, घर चलें और लाशों को दफनाकर तबान के महल में चांदनी के संदूक के पास बैठकर दुआ करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा अपने आने वाले सहराई रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में हमारी मदद और हिमायत करेगा, फिक्रमंद ना हो। राहिल, मेरा दिल कहता है कोई हमें हाथ न डाल सकेगा। चलो घर चलें, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगी, अपना रेवड़ भी वहीं ले चलो। कल से मैं तुम्हारे इस रेवड़ को बनु निजार के मुत्तहिदा रेवड़ में शामिल कर लूंगा। आज के बाद तुम रेवड़ लाने न जाया करोगी, घर में रहा करोगी। तुम रेवड़ को हाथ में कर लाओ, मैं लाशों को लेकर घर चलता हूँ। राहिल ने हार मानते हुए कहा, अगर आपकी यही रजा है तो मुझे भी मंजूर है। अगर कोई मुसीबत आएगी तो दोनों पर इकट्ठी ही आएगी। रुबेल जब दोनों घोड़ों की बाजें पकड़कर चलने लगा तो राहिल ने इसका बाजू पकड़ते हुए कहा, आप अभी यहीं रुके, मैं रेवड़ को हाथ लाऊं, फिर इकट्ठे चलते हैं। मैं आपको तन्हा न जाने दूंगी, आप अपने साथ लेकर चलो जाऊंगी। राहिल ने रेवड़ को हाँक कर इस जगह लाई जहाँ रुबेल दोनों घोड़ों की बाजें पकड़े खड़ा था। दोनों घोड़ों में एक पर जमरा जरा और बनु वाकिद की बूढ़ी औरत और दूसरे पर यहूदा और अजील की लाशें रखी हुई थी। दोनों जब शहर में दाखिल हुए तो औस गर्दान के इन अनगिनत मुसल्लह जवान इन दोनों की हिफाजत के लिए इनके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। शायद वो अरब जिन्होंने यहूदियों को कत्ल करने में रुबेल की मदद की थी और पहले ही अरबों को इस कहानी की इत्तला कर चुके थे। बकरियों को हाँकते हुए राहिल रुबेल के पास आई और किस कदर सुकून महसूस करते हुए इसने कहा, यहाँ तो हर जवान हमारी हिमायत में मुसल्लह हो रहा है। आपका ना भागने का फैसला मुनासिब और दुरुस्त था। अपने इस कदर मुसल्लह अरब भाइयों के अंदर अब मैं महसूस कर रही हूँ कि हम दोनों महफूज हैं और यसरब में हमें यहूदियों से कोई खतरा नहीं है। रुबेल ने भी तसल्ली देने की खातिर कहा, तुम फिक्रमंद और गमज़दा ना हो राहिल, और इस कजरान के इस कदर मुसल्लह जवानों की मौजूदगी में यहूदी आसानी के साथ हम दोनों पर चढ़ाई न कर सकेंगे। और तो कजरान के मुसल्लह जवान जो जमकट्टे में जब रुबेल और राहिल हवेली में दाखिल हुए तो इन्हें हैरत हुई कि हवेली का सहन बनु निजार के मुसल्लह जवानों से भरा हुआ था। जब वो अंदर गए तो वो कुछ जवान आगे बढ़े और बकरियों को पकड़ कर सहन में बांधने लगे। रुबेल और राहिल कुछ और नौजवानों की मदद से लाशों को घोड़ों से उतारकर चारपाइयों पर डालने लगे थे, जबकि हवेली के चारों तरफ बाहर गली में औस और गजरान के मुसल्लह जवान फैलकर रुबेल और राहिल की हिफाजत के लिए पहरा देने लगे थे। यसरब का इब्लीस फतीवन अपनी हवेली के दीवान खाने में यहूदी सरदार और जमान के साथ बैठा हुआ रुबेल के साथ मारे जाने वाले 20-25 यहूदी जवानों की मौत के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था और दीवान खाने से बाहर कुछ मुसल्लह यहूदी खड़े पहरा दे रहे थे कि औस गिजरान का सरदार मालिक बिन अजलान अपने घोड़े को भगाता हुआ हवेली में दाखिल हुआ। शायद इसे खबर हो गई थी कि यहूद रुबेल के मुतालिक कोई फैसला करने के लिए फतीउन के यहाँ जमा है, लिहाजा वो दीवान खाने के करीब आकर अपने घोड़े से उतरा और वहाँ खड़े मुसल्लह पहरेदारों से एक को मुखातिब करके इसने कहा, फतीउन से कहो कि मालिक बिन अजलान आया है और वो अलहदगी में सिर्फ चंद बातें गुफ्तगू करना चाहता है। वो बहरे दीदार दीवान जाने का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया था। थोड़ी देर बाद फतीउन बाहर निकला और मालिक बिन अजलान की तरफ देखते हुए कहा, तुम बाहर क्यों खड़े हो गए? अंदर आ जाते, इस घर में तुमसे कोई पर्दा नहीं है। मालिक ने हवेली के बाग की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा इस तरफ आइए, मैं जरा अलहदा में कुछ कहना चाहता हूँ। फतीउन सीढ़ियां उतरकर बाग की तरफ हो लिया। मालिक भी इसके साथ था। खजूर की इस दरख्त से टीक लगाए हुए फतीउन ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो?
मालिक ने आजिज़ी और मुस्कुराहट में कहा, दरअसल मैं ये बताने आया था कि किन नागुज़ीर हालात में रुबैल और चंद अरबों के हाथों यहूदी जवान कत्ल हुए हैं। वो बेचारा बेगुनाह है। इसके हाथों मरने वाले ने पहले बनु वाकिफ की एक बूढ़ी औरत को मारने के अलावा इसके भाई, इसकी माँ, इसकी बहन के साथ इसके होने वाले ससुर को भी कत्ल कर दिया था। कतीवन ने चौंकते हुए पूछा, इसकी शादी किससे होने वाली है? बनु सालिम के अजील की बेटी राहिल के साथ। कतीवन ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, मेरे ख्याल में वो अरबों ही में नहीं बल्कि यसरत की सबसे हसीन और पुरकशिश लड़की है। मैं एक अरसे से इस आस लगाए बैठा था कि इसकी शादी हो तो तुम फौरी तौर पर इन दोनों की शादी का इंतजाम करो। मालिक बिन अजलान ने किसी कदर मुतमईन लहजे में कहा, मैं कल ही इन दोनों की शादी का बंदोबस्त कर देता हूँ, लेकिन तुम ये वादा करो कि रुबैल के खिलाफ कोई तादीब कार्रवाई न की जाएगी। कतीवन ने अपने सर को झटकते हुए कहा, मैं जज्बात में ये तो भूल ही गया था कि वो कातिल है और सब यहूदी जमा मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि इसे कत्ल कर दिया जाए। मालिक ने धीमी आवाज में कहा, इसके कत्ल से तुम्हें क्या हासिल होगा? अगर ऐसा हुआ तो राहिल खुदकुशी कर लेगी क्योंकि वो रुबैल से मोहब्बत करती है, और फिर ये भी सोचो कि इस बेचारे की माँ बहन के अलावा जो जवान और इकलौता भाई भी मारा गया है। इसके अलावा ओस कजरन के जवान मुसल्लह होकर इसकी हवेली के अंदर और बाहर पैदा दे रहे हैं। इस मौके पर अगर इससे बास परस की गई तो अरबों और यहूदियों में ऐसी जंग छिड़ जाएगी जिसे यसरत के आसमान से पहले कभी न देखी गई होगी। और अगर एतराफ और तनास में पहले हुए दूसरे अरब कबाइल भी इस जंग में कूद गए तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जंग की सूरत हाल किस खौफनाक हो जाएगी। कतीवन ने परेशान आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे जंग की धमकी दे रहे हो? मालिक ने नरम लहजे में कहा, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा भी मुमकिन है और फिर इसके खिलाफ अगर तादेबी कार्रवाई की गई तो मेरे सारे अखराजात और इंतजामात पर भी पानी फिर जाएगा, क्योंकि आज शाम मेरी बहन कंटूरा की शादी है और रुबैल को कुछ हो गया तो ये शादी रोक देनी पड़ेगी। जो अखराजात मैंने किए हैं गारत हो जाएंगे। मालिक ने अजलान हर तरह लोग और लालच देकर कतीवन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। कतीवन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम्हारी बहन कंसूरा की शादी है। अच्छा, अब मुख्तर कहो, तुम चाहते क्या हो? मालिक ने अजलान ने निहायत नरम आवाज में कहा, मैं चाहता हूँ कि रुबैल को माफ कर दिया जाए, क्योंकि फसाद खड़ा करने में इससे पहल नहीं की, और फिर ये भी कि तो सोच रखो कि अरब इस बात से भी नाला है कि अगर इनकी बेटियां शादी के बाद अपनी पहली रात तुम्हारे पास बसर करती हैं तो रुबैल को अगर कत्ल कर दिया गया तो वो और बिफर जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग छुपकर तुम पर भी हमला करने की कोशिश करें। अगर तुम मारे गए तो जानो तुम्हारे बाद तुम्हारे अहले खाना की हालत क्या होगी। लोग तुम्हारी बेटियों की इज्जत भी बर्बाद कर देंगे। मैं कहता हूँ जबकि तुम सब कुछ कर सकते हो, इस वाक़ये को यहीं दबाओ, इसी में तुम्हारी और मेरी बेहतरी है। मालिक के डराने धमकाने और लोग लालच देने का असर ऐसा हुआ कि कतीवन ने हथियार डालते हुए कहा, मालिक तुम दुरुस्त कहते हो, रुबैल की जिंदगी में ही मेरी कला है, तुम मुतमईन होकर चले जाओ, मैं सब यहूदियों जमा को समझा लेता हूँ, कोई भी रुबैल से किसी किस्म का तारुज न करेगा। कतीवन वहाँ से हटकर दोबारा दीवान खाने में चला गया था, जबकि मालिक बिन अजलान मुतमईन अंदाज में अपने घोड़े पर सवार हुआ और इसे भगाता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। रुबैल को हवेली से बाहर मालिक बिन अजलान ने अपने घोड़ों को रोका। वहाँ खड़े होकर पहरा देने वाले और गजरान के जवानों से में से एक ने भागकर इसके घोड़े की बाग पकड़ ली। मालिक बिन अजलान घोड़े से उतरा और तकरीबन भागता हुआ जब वो हवेली में दाखिल हुआ तो इसने देखा चारपाइयों पर लाशें पड़ी थी और राहिल और गजरान की अनगिनत औरतें के सामने बैठी रो रही थी। एक सतून से टेक लगाकर रुबैल खड़ा था, इसकी आंखें बंद थी और इसमें आंसू बह रहे थे और इनके गिर्द बनु नजार के नौजवान अपने हाथों में तलवारें लिए चुस्त चौबंद खड़े थे। मालिक की गर्दन गम और दुख में झुक गई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो रुबैल की तरफ बढ़ा, इसकी आंखों से भी आंसू बह निकले थे और आगे बढ़कर रुबैल को गले से लगाया। मालिक से गले मिलकर रुबैल बेचारा और ज्यादा सिसक पड़ा और इसके आंसू तेजी से मालिक के शाने पर गिरने लगे थे। मालिक ने पहले अपनी आंखें खुश की, फिर अपने अमामे के पल्लू से इसने रुबैल के बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरे मुहसिन, मेरे भाई, सब्र करो, मैं जानता हूँ ये खाली घर हो गया है, लेकिन कसम है मुझे जमीन और आसमान के खालिक की, अनकरीब वो रात वक्त
आया जाता है कि जब मैं यहूदियों के घरों में बदतरीन तबाही और इससे कहीं ज्यादा होमनाक वीरानियां बर्पा कर दूंगा। मुझे यहाँ आने में देर हो गई। मैं तुम्हारे सिलसिले में बात करने फतीउन के पास चला गया था। वहाँ सारे यहूदी सरदार भी जमा थे। मैंने फतीउन को अलहदा बुलाकर इससे गुफ्तगू की और इससे अपने अमल पर आमादा कर लिया था कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी तारीबी कार्रवाई ना की जाए। मालिक बिन अजलान ने जरा रुककर रुबैल से कहा, रुबैल अगर तुम कहो तो इस हादसे के अफसोस में कंतूरा की शादी मुलतवी कर दी जाए। रुबैल ने चौंक कर कहा, नहीं, ये शादी जरूर होगी और आज की रात हम फतीउन का बोझ अरबों के सर से उतार फेंक देंगे। मालिक ने रुबैल का हाथ थामते हुए कहा, तो फिर आओ मरने वालों की तजहीर तस्कीन के बाद अपनी असल मुहिम की इत्तला करे। दोनों वहाँ से हटे और उदास से फजरन के नौजवानों ने साथ मिलकर लाशों को दफन करने का बंदोबस्त करने लगे। सारी लाशों को दफन करने के बाद रुबैल और राहिल घर आए। अब शाम हो गई थी और अंधेरा घेरा हो गया था। और फजरान के जवान अब तक रुबैल की हवेली के अंदर और बाहर पहरा दे रहे थे। अपने कमरे में खड़ा होकर रुबैल कुछ देर सोचता रहा और राहिल इसके करीब खड़ी असुदा सी इसे देख रही थी। फिर रुबैल ने लकड़ी का एक संदूक खोला और इसमें से इसने अपनी माँ का एक लिबास निकाला और बगल में दबाकर जब वो कमरे से बाहर निकलने लगा तो उदास खड़ी राहिल ने चौंकते हुए कहा, ठहरिए रुबैल, रुक गया। राहिल ने इसके करीब आई और इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसने पूछा, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं और ये अपनी माँ का लिबास आपने क्यों बगल में दबा लिया है? रुबैल ने इसकी धारस बनते हुए कहा, अभी कुछ मत पूछो राहिल, दुआ करो जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ इसमें मुझे कामयाबी हो तो वापस आकर पूरी दास्तान तुमसे कहूंगा। राहिल ने रोती हुई आवाज में कहा, आपके अंदाज बता रहे हैं कि आप किसी इंतकामी कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। फिर राहिल ने रुबैल का बाजू पकड़ लिया और पीछे खींचती हुई इसने कहा, मैं आपको रात के इस वक्त कहीं न जाने दूंगी, आराम से घर बैठिए, मैं अब आपको बाहर न जाने दूंगी। रुबैल ने कपड़ों की गठरी मजबूती से बगल में दबा ली और प्यार से राहिल का गदाज हाथ अपने हाथ में लेते हुए इसने कहा, राहिल ये ना सोचना मैं अपनी जिम्मेदारियों से आगा नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम उस दुनिया में तन्हा रह गई हो और तुम्हें मेरी जरूरत है। यही नहीं बल्कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। मैं इस सुकून को गिराने जा रहा हूँ जिसके गिरने के बाद मैं और तुम मियाँ बीवी की हैसियत से पुरसुकून जिंदगी बसर कर सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ मैं किसी का सहारा हूँ, लिहाजा मैं अपने आप को खतरात में डालने की कोशिश ना करूंगा। मैं मालिक बिन अजलान के साथ मिलकर वो काम ऐसी तरकीब और तदबीर से काम करूंगा कि हम दोनों पर कोई हर्फ भी ना आ सकेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मैं कंतूरा की शादी में शिरकत के लिए जा रहा हूँ। 5 इंसानी जानों के जिया के बाद ये शादी यकीनन मुलतवी हो चुकी होती, लेकिन मजबूरी के तहत ये शादी हो रही है। हालात सुकून होते तो इस शादी में तुम्हें भी मैं साथ लेकर चल जाता, लेकिन अब इन पर आशोब लम्हात में तुम्हारा घर के अंदर रहना ही बेहतर है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपने ऊपर घबराहट तारी ना कर लेना। मैं बहुत जल्द लौटूंगा, तुम मेरी कामयाबी की दुआ भी करना। राहिल कुछ कहना चाहती थी कि रुबैल ने कमरे से निकलकर अस्तबल से अपना घोड़ा लिया और हवेली से बाहर निकल गया था। इशा के थोड़ी देर बाद कंतूरा की शादी की रस्म अदा हुई और जब फतीउन के आदमी इसे मुहाफा में बिठा कर ले जाने लगे तो रुबैल और मालिक बिन अजलान भी जनाना कपड़ों में अपने आप को ढांककर इसकी सहेलियों की हैसियत से इसके साथ बैठ गए और फतीउन के पहाड़ उन्हें उठाकर फतीउन की हवेली को रवाना हो गए थे। रास्ते में रुबैल ने मालिक के कान में सरगोशी करते हुए कहा, मैं तुमसे एक बात कहना भूल गया था। सुनो, फतीउन को ठिकाने लगाने के बाद मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी हवेली में आऊंगा, इसलिए मैं अपना घोड़ा वहीं छोड़ आया हूँ और वहाँ से लिबास तब्दील करके हम यहूदी महाजिन की तरफ रवाना हो जाएंगे। मेरी हवेली में चूंकि एक जवान पहरा दे रहा है, इसलिए फतीउन को कत्ल करके जनाना लिबास में मेरा वहाँ जाना मुनासिब नहीं। पालकी फतीउन को हवेली में दाखिल हो गई थी, लिहाजा रुबैल खामोश हो गया था। कहाँ पालकी को सीधा फतीउन की ख्वाबगाह में लाए। इन्होंने पालकी एक सजी हुई मसेरी के करीब रख दी और जब वो वापस जाने लगे तो रुबैल और मालिक तूफान की तरह पालकी से बाहर निकले। रुबैल ने भागकर
ख्वाबगाह का दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक झटके के साथ इसने अपनी तलवार निकाली और इन चारों कहारों की गर्दनें इसने काट दी। इस वक्त तक मालिक अपनी तलवार की नोक फतियून की गर्दन पर रखकर खड़ा हो गया था। कंतूरा भी पालकी से निकलकर बाहर आ गई थी। चारों कहार को खत्म करने के बाद रुबेल फतियून के पास आया और कहर आलूद अंदाज में अब इसकी तरफ देखते हुए कहा, जलील कुत्ते, तुमने देखा आज तुम्हारी बदअमालियों के अविज कुदरत ने तुम्हें बेबस और मजबूर करके हमारे सामने खड़ा किया है। रुबेल और मालिक ने निगाहों में ही कोई इशारा किया तो फिर मालिक की चमकदार तलवार बुलंद हो गई और फतियून को दो हिस्सों में काटती हुई निकल गई थी। रुबेल और मालिक ने अपनी तलवारें फतियून के लिबास से पहुंचकर मयान में रगड़ ली और खिड़की के रास्ते वो हवेली से बाहर कूद गए थे। गहरी तारीकी में डूबी गलियों में दोनों वापस भागते जा रहे थे। आसमान पर बादलों के तारीख वजनी टुकड़े और दूसरे के पीछे भाग रहे थे। चांद अभी तुलू नहीं हुआ था और तारीकी अपने उरूज पर और जोबन पर थी। कभी कभी कोई सेराही परिंदा दुनिया के आगाज और इब्तिदा के गीत गाता हुआ यसरत के ऊपर से गुजर जाता था। इनकी आवाजों से चंद लम्हों तक फिजा में एक इर्तिशा सा पैदा होता और दोबारा फिजाएं किसी उदास गीत की तरह मगमूम और मलूल होकर रह जाती। मालिक की हवेली में दोनों भागते हुए वापस आए। जल्दी इन्होंने कपड़े बदले और अपने घोड़ों पर सवार होकर हवेली से बाहर निकल गए थे। थोड़ी देर बाद वो यहूदी महाजिन जबलून की हवेली के सामने खड़े थे। दरवाजे पर दस्तक देने से कबल मालिक ने रुबेल की कान में सरगोशी करते हुए कहा, ये तुमने अचानक अपना फैसला क्यों बदल लिया और फतियून के साथ तुमने कहारों को भी कत्ल कर दिया। रुबेल ने भी सरगोशी करते हुए कहा, मुझे भी देर से इसका ख्याल आया था कि ऐसा करना जरूरी था। अगर हम अकेले फतियून को मारते तो लोग ये भी शक कर सकते थे कि इसे कंतूरा ने मार दिया है। अब कहारों के साथ मरने से कंतूरा पर कोई शक की गुंजाइश न रहेगी। मालिक ने खुश होते हुए रुबेल की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने निहायत दानिशमंदाना कदम उठाया है। जमीन और आसमान के मालिक की कसम, जिसका तुम जैसा रफीक और हबीब हुआ है, कोई खतरा कोई खौफ नहीं हो सकता। मालिक जब खामोश हुआ तो रुबेल ने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद जबलून ने दरवाजा खोला और इस दोनों की तरफ देखते हुए इसने कहा, आज तुम दोनों सरदार मेरी तरफ कैसे निकल आए हो? रुबेल ने कहा, बनु नजार की वो बेवा जिसकी बेटी ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली थी, मैं इसका नाम भूल गया हूँ। इसने तुमसे कुछ कर्ज लेकर रखा था, वो अदा करने आया हूँ। जबलून ने खुश होते हुए कहा, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दीवान खाने का दरवाजा खुलवाता हूँ, फिर हिसाब लगाकर बताता हूँ। इसके जिम्मे कितनी रकम है? जबलून ने दीवान खाने में इन दोनों को बिठाया। फिर इसने इस बेवा की रकम बताई जो रुबेल ने अदा कर दी। और जब वो वहाँ बैठे बातें कर रहे थे तो जबलून का जाने वाला एक यहूदी भागता हुआ आया और जबलून से कहा, गजब हो गया, फतियून को किसी ने कत्ल कर दिया है। आज जब मालिक बिन अजलान की बहन कंतूरा को इसकी ख्वाबगाह में पहुंचाया गया तो कुछ देर बाद वो चीखती हुई ख्वाबगाह से बाहर निकली और लोगों से कहा कि फतियून को किसी ने कत्ल कर दिया है। कंतूरा का कहना है कि कुछ लोग पहले ही ख्वाबगाह में छुपकर बैठे थे, उन्होंने अपने चेहरे ढांप रखे थे, लिहाजा कंतूरा पहचान नहीं सकी। बहरहाल इसका कहना है कि वो तादाद में 3 थे और इन्होंने सिर्फ फतियून को ही नहीं बल्कि इन कहारों की मौत के घाट उतार दिया जो इसकी पालकी लेकर ख्वाबगाह में आए थे। जबलून ने रुबेल और मालिक की तरफ देखते हुए गमजदा लहजे में कहा, आज फतियून की हवेली में चलते हैं और देखते हैं फतियून को किसने और कैसे कत्ल किया है। रुबेल और मालिक रजामंद हो गए और इसके साथ हो लिया। जब वो फतियून की हवेली में दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि वहाँ अनगिनत यहूदी जमा थे और फतियून के कत्ल पर गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। रुबेल और मालिक जब वहाँ पहुंचे तो यहूदियों ने इन दोनों की शक की निगाह से देखना, लेकिन जब जबलून ने इन्हें बताया कि ये दोनों मेरे पास बैठे हुए थे तो यहूदी मुतमईन हो गए। इस वक्त तक कंतूरा अपने घर जा चुकी थी। मालिक ने रुबेल को इशारा किया और दोनों हवेली से बाहर निकल गए। एक तालीब और वीरान जगह आकर मालिक रुक गया और रुबेल की तरफ देखते हुए कहा, रुबेल, मैं अभी और इस वक्त नबू वसान के बादशाह अबू जबीला की तरफ रवाना होता हूँ। मैं आज रात ही अपने सफर का काफी हिस्सा तय कर लूंगा। मेरे बाद कंतूरा और मेरे घर के दूसरे अफराद का ख्याल रखना। मैं वापस आकर कंतूरा को इसके शोहर के घर रवाना कर दूंगा। मेरे बाद और बसराम का ख्याल रखना। कोशिश करना कि मेरे आने तक यहूदियों के साथ कोई उलझन पैदा न हो। वैसे मुझे उम्मीद है कि चंद रोज तक वैसे भी यहूदी मसरूफ रहेंगे और फतियून की जगह किसी को अपना सरदार बनाने के लिए चंद रोज तक जोड़ तो और भाग दौड़ करते रहेंगे। इस वक्त तक मैं जबीला की सूरत में इनके लिए आजाद
पाप बनकर नासिल हो जाऊंगा। मेरा कोई पूछे तो कहना बहन की शादी पर इसने काबे का तवाफ मान रखा था और वो मक्का चला गया है। घोड़े पर बैठे मालिक ने रुबैल से मुज़ाकरा किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। रुबैल वहां अंधेरे में थोड़ी देर तक खड़ा रहा। चांद अब तुलू हो गया था और बादलों के टुकड़ों के बीचों बीच दामने आसमां पर सितारे के नक्शो निगार पसरत के गीत गाते और कायनात पर मुस्कुराते दिखाई देने लगे थे। जब मालिक के घोड़े की टापों की आवाज आना बंद हो गई तो रुबैल ने अपने घोड़ों की मोड़ एड़ लगा दी। रुबैल अपनी हवेली में दाखिल हुआ और फजरान के जवान हवेली के अंदर और बाहर को कुछ सो रहे थे और कुछ जाग कर पहरा दे रहे थे। रुबैल असनबल की तरफ गया, घोड़े को वहां बांधकर इसकी जेनो धाना उतारा और इसे चारा डालकर जब वो अपने कमरे में आया तो इसने देखा कमरे में राहिल ने जैतून के तेल से जलने वाला एक चमकिया दिया रोशन कर रखा था और वो खुद फर्श पर चटाई बिछाकर बैठी रुबैल का इंतजार कर रही थी। जो ही इसने रुबैल को देखा वो खड़ी हो गई। उसके करीब आकर इसने सरगोशी करते हुए कहा, मैं आपको कामयाब पर मुबारकबाद देती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप और मालिक ने सवा पतियों को कत्ल नहीं कर सका, नहीं आपके सिवा कोई पतियों को कत्ल नहीं कर सकता। अपने आने वाले सेहराए रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रब की कसम, आपने ऐसा उम्दा फेल और नेक अमल किया है कि जिस पर आने वाली अरब नस्लें फख्र ताल्ली करेंगी। फिर राहिल ने प्यार से रुबैल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, आपने खाना खाया? नाविल यसरत के इब्लीस का पार्ट 4 यहाँ इख्तिताम पसीर होता है। बकिया किताब सफा नंबर 67 से समाप्त फरमाइए। शुक्रिया।